Okay, so let's start the session. Okay. Basically, this machine learning now, the topic machine learning or deep learning. In fact, ये जो topic है machine learning, it is totally based on statistical technique. तो हम लोग पूरे statistical technique को भी discuss करेंगे हम लोग, okay? तो हमारा जब topic when we are going to talk about machine learning, so definitely we'll be discussing about all these statistical technique, okay? तो यहाँ पर we are talking about machine learning, which is also known as ML, okay, and artificial neural network, or it is also called deep learning, okay, and artificial neural network. So artificial neural network is also known as what? Deep learning, huh? Deep learning, deep learning. So we are going to talk about both, fine, deep learning, artificial neural network, deep learning. Now, if you look at machine learning, what is machine learning, why machine learning, how it works and all that. So we are going to discuss more in detail, okay? So we'll be talking much in detail about machine learning and of course artificial neural network. But uska ek one of the main difference हम लोग discuss करेंगे. So machine learning is basically based on statistics, okay? So ML basically uses all statistic technique, okay? So uses all statistical technique, uses statistical techniques. तो मशीन लर्निंग को और एक भी नाम है, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल लर्निंग भी बोलते हैं उसको, okay? तो आल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल लर्निंग, ओके। और जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ना, ANN, उसको शॉर्ट में बोलेंगे ANN बोलेंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, अनदर नेम इज कॉल्ड डीप लर्निंग। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या शॉर्ट में आप न्यूरल नेटवर्क भी बोल सकते हो, न्यूरल नेटवर्क, हाँ, न्यूरल नेटवर्क। तो उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं NN, ओके। उसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल न्यूरॉन, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। So when we talk about biological neural network, we are talking about what? Brain. Brain. And in the brain, one of the most important part, one of the most important component of brain is neurons. Neuron. So in the brain, all the learning, all the processing happens in neurons. So we have got, in fact, billions of neurons, okay, and trillions of connection between neurons, between one neuron to another neuron. ठीक है? आप लोगों को, आर यू एबल टू हियर मी? आप लोग आवाज आ रही? यस सर। अच्छा, आई थिंक सलमान पूछ रहे कि सर आर यू ऑन म्यूट, मतलब सलमान कैन यू हियर मी? हेलो सलमान, आर यू एबल टू हियर मी? इनफैक्ट सलमान को एक कुछ प्रॉब्लम था, आई थिंक आप लोग को, दूसरों को तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। मुदस्सिर, आप मुदस्सिर और अरशद, आपको आवाज आ रही मेरी? अरशद, कैन यू हियर मी क्लियरली? यस सर। अगर किसी एक आध को प्रॉब्लम है तो मतलब वो उनकी तरफ से हो सकता।
सलमान को प्रॉब्लम हो रहा, नोज बोल मतलब ओके। तो यहाँ पर देखिए, बेसिकली मशीन लर्निंग बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ठीक है ना। और न्यूरल नेटवर्क बेसिकली बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स विच इज ऑल अबाउट ब्रेन न्यूरॉन्स। ओके, तो ये दोनों टेक्निक अलग अलग है, देखिए मतलब मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क, दीज आर द टू डिफरेंट टेक्निक्स आते हैं। ओके, तो फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग, देन लेटर विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूरल नेटवर्क। तो हम लोग न्यूरल नेटवर्क की बात नहीं करेंगे, हम लोग पहले बात करेंगे मशीन लर्निंग की बात करेंगे हम लोग। तो मशीन लर्निंग दैट मीन्स when we are talking about machine learning means it's all about statistical technique. Okay, now let's talk about what is अच्छा machine learning मतलब हम short में ML बोलेंगे, what is ML. Okay, why ML, what is ML, how it works, all that. Okay, so let's talk about what is machine learning. अब ये I'll break down actually यहाँ पर machine learning दो वर्ड है, देखिए यहाँ पर एक, ओके यहाँ पर दो वर्ड है, मतलब बेसिकली द मशीन इज व्हाट इक्वल टू व्हाट, कंप्यूटर, राइट। अ मशीन नथिंग बट कंप्यूटर, इट इज बीइंग रेफर्ड टू कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व्हाटएवर इट इज। ओके, इन सिंपल वर्ड कंप्यूटर। लर्निंग इज ऑल अबाउट यू नो व्हाट, लर्निंग फ्रॉम डेटा। एक्चुअली लर्निंग इज इक्वल टू मतलब गेनिंग नॉलेज फ्रॉम द डेटा। ओके, गेनिंग नॉलेज फ्रॉम डेटा। So this is simple. What is exactly the word machine learning? तो machine computer learning is learning from the data. तो अब दोनों को अगर बात करेंगे machine learning, you know what? Machine learning is a technique which learn from data without being a program. प्रोग्रामिंग कोडिंग करने की जरूरत नहीं रहती है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग मतलब मशीन लर्निंग क्या है? सेट ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम्स, okay, which learn from data without explicitly program. मतलब you don't need to program, okay, no need to program to teach something, just provide data. Okay, so no need to write a program to teach something, just provide data, just feed data. So that means it learns from data. And machine learning is something which is close to human, because human being, we learn from data, the past experience. Okay, so how is it close to human beings? Okay, so human being basically learn from past experience, isn't it? Past experience. And when we say past experience means we are talking about data only, isn't it? The past data, right? So past experience is all about the data. So we are learning from data, the machine is learning from data. That's why it is. Okay, so this is what is exactly the meaning of machine learning. Machine learning. So technically it is nothing but what? Set of learning algorithms. Okay, so set of learning algorithms. Now machine learning is a basically, if you look at is a branch of AI, artificial intelligence. Okay, machine learning is a branch of AI. AI stands for what? Artificial intelligence. Okay, artificial intelligence. And AI is a basically or you can branch in the sense, you can just call it a field. In fact, is a field of AI, and this is called a branch of computer science. AI is a branch of computer science. तो मतलब ML किसका पार्ट हो गया? AI का पार्ट हो गया, artificial intelligence. तो मतलब machine learning is one of the field. So AI has got different fields, and machine learning is one of the field of AI. Okay, one of the field, very popular. Okay, so one of the field of AI, one of the part of AI, ठीक है, machine learning. और अगर बहुत ही briefly अगर हम इसकी बात करें, what is AI, what is artificial intelligence? Okay, तो यानी मतलब artificial intelligence is all about the ability of computers to learn or to act like a human being. Okay, basically इसको क्या बोलते हैं? Simulation of human intelligence into machines.
Okay, simulation of human intelligence, sorry, into name by machines. Simulation of human intelligence by machine. So machine, then machine are machines can, or machine mimics human beings. So mimics, okay, mimics. So that means machine now can perform what human being can. Human like intelligence, or simple ये बोल सकते हैं human like intelligence in machines. The ability to learn, acquire knowledge and skills. Okay, the ability to learn, acquire knowledge and skills. So this is a simple definition of AI, artificial intelligence. So, but right now we are not talking about full AI. We are particularly talking about machine learning. Okay. So machine learning किसका part है? AI का part है. So let's continue about machine learning. So now if you look at why machine learning, because it's going to save time. Like naturally, like it's a great idea that what human can do now, the machine is doing is going to save huge time, isn't it? So the question is that why means, of course, one of the main reason is that time saving, great time saving, is it? Time saving, cost cutting, cost saving, time saving, cost saving. Okay, so because of the human level intelligence, it's all about through automation, right? Because it will automate actually things. तो पहले आप सिंपल में पहले समझो कि मशीन लर्निंग टेक्निकली क्या है. तो मशीन लर्निंग क्या है, मतलब सेट ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम्स. तो ये एल्गोरिथम का वर्ड तो मालूम है आपको. एल्गोरिथम मतलब सेट ऑफ डिटेल स्टेप्स, इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो उसको एक एल्गोरिथम बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर जब वर्ड एल्गोरिथम आया ना, तो ये कौन सा एल्गोरिथम है? ये लर्निंग एल्गोरिथम से. लर्निंग एल्गोरिथम मींस which learn from data. Okay, which learn from data. तो बेसिकली एल्गोरिथम से. और लेट मी टेल यू दैट आपको ये एल्गोरिथम को डेवलप करने की जरूरत नहीं है. ये पूरे रेडीमेड मतलब एल्गोरिथम्स है. तो यू कैन जस्ट अप्लाई दिस एल्गोरिथम्स ऑन डेटा एंड दिस एल्गोरिथम्स लर्न फ्रॉम डेटा. ठीक है. अब हाउ टू अप्लाई दिस एल्गोरिथम्स एंड ऑल दैट. So of course we are going to use Python. So in Python we will be using this algorithm through a particular library. तो उसके लिए एक particular library है. तो हम लोग library के बारे में भी बात करेंगे हम लोग. Now machine learning मतलब अब machine learning में क्या है, मतलब types वगैरह. तो machine learning किस तरह से divided होगा? तो machine learning basically divided into different parts. We have something called supervised learning and unsupervised learning. There is something called reinforcement learning, which is basically part, I'll tell you what is that actually. We'll be focusing on these two, supervised learning and unsupervised learning. So we are going to focus on these two. We are not going to focus on this. So what is exactly supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning? We'll be talking about this all. Okay, so supervised learning. So let's talk about first supervised learning. So under supervised learning, why it is called supervised learning, I will tell you that. Okay. So under supervised learning, again you have got two parts. One is called regression. Okay, regression. The other is called classification. Okay, so let's talk about first supervised learning, regression, classification. ठीक है. अब यहाँ पर आपको वो पूरे स्टैटिस्टिकल की टेक्निक वगैरह सब समझ में आ जाएंगे. हाँ, तो मशीन लर्निंग के दो पार्ट हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग. अब इसको यानी सुपरवाइज लर्निंग क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग, फिर उसके अंदर रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. तो रिग्रेशन का क्या यूज केस है, क्लासिफिकेशन का क्या यूज केस है, तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट, इजंट इट. तो हम लोग बात करेंगे पहले रिग्रेशन में. रिग्रेशन तो बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू build predictive models. Okay, used to build predictive models.
यानी फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन करने के लिए सुपरवाइज लर्निंग को यूज करते हैं टू बिल्ड प्रिडिक्टिव मॉडल्स। तो उसके अंदर दो है, रिग्रेशन एक है, क्लासिफिकेशन है। रिग्रेशन कब यूज करते हैं मालूम? टू प्रिडिक्ट a target, I'll tell you what's the meaning of that. Okay? To predict a target categorical value or target continuous variable. Okay? और क्लासिफिकेशन कब यूज करते हैं? टू प्रिडिक्ट a categorical variable. Categorical variable. तो रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन में आप टू प्रिडिक्ट टारगेट कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड क्लासिफिकेशन में टू प्रिडिक्ट कैटेगरिकल वेरिएबल। अब इसका एग्जांपल लेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट व्हाट, प्रिडिक्ट प्राइस, यू नो, फॉर एग्जांपल predict the price of a price of gold, for example, predict the price of anything, like for example price of house, price of you know, for example you would like to predict price of gold, future में gold price क्या होगा, share price, you want to predict share, okay? तो इसमें कई चीजें आते हैं, gold price। तो अब ये फॉर एग्जांपल यू नो, अब जस्ट मैं एक बात आता, प्राइस ऑफ हाउस, प्राइस ऑफ हाउस, ओके? तो ये प्राइस क्या है, मतलब प्राइस क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, उनके वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल you want to predict, for example you want to predict you know, categorical variable को क्या हो सकता? For example you want to predict a disease, for example predict whether a patient is you know, positive or negative, diabetic positive, or predict a patient, predict disease, for example predict a disease बोलो आप, या कोई भी complications, ओके? तो एग्जांपल मतलब a patient diabetic, yes or no, okay? A patient, whether patient is diabetic, okay, you are predicting yes or no, diabetes। तो कोई भी प्रिडिक्ट को डायबिटिक क्या करेंगे आप, से ट्रू यस और नो, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं आप, ओके? तो इसके कई एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर अगर आप दूसरे एग्जांपल को, यू नो, यू वांट टू प्रिडिक्ट वेट, ये वेट भी क्या है, कंटिन्यूअस में वेट। यू वांट टू प्रिडिक्ट यू नो, फॉर एग्जांपल स्पीड, यू वांट टू प्रिडिक्ट स्पीड। तो प्राइस ऑफ ए हाउस, weight, speed, they all comes under continuous variable, okay? Continuous variable। और क्लासिफिकेशन में ये डिजीज, फॉर एग्जांपल ये क्या है, कैलकुलस। फॉर एग्जांपल you can predict that you know, whether a particular accident में, in accident did the person died or survive, okay? तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक एक्सीडेंट में मतलब सरवाइव, ओके? सरवाइव, यस नो। तो इसका मतलब सिंपल है, ये कैटेगरिकल में आएगा। तो ये पूरा प्रिडिक्शन हो रहा, चाहे वो रिग्रेशन हो चाहे क्लासिफिकेशन हो। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बिल्डिंग प्रिडिक्टिव मॉडल्स, और इसको क्या बोलेंगे, सुपरवाइज लर्निंग। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग, विल डिस्कस दैट। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बोला तो ये है, ये पूरे स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। अब इसके अंदर क्या आते हैं, मतलब सारे मालूम, एल्गोरिथम्स आते हैं पूरे। तो अब ये रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स क्या क्या है, ओके? व्हाट आर द एल्गोरिथम्स अंडर रिग्रेशन, ओके? ये सारे इसके एल्गोरिथम होगा। तो रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स होगा। तो टू प्रिडिक्ट एनी कंटिन्यूअस वेरिएबल यू हैव टू अप्लाई रिग्रेशन एल्गोरिथम्स, ओके? मैं यहाँ पर क्लियर लिख रहा हूँ, रिग्रेशन एल्गोरिथम्स। तो इसके नेम्स क्या क्या, एल्गोरिथम्स के नेम क्या क्या है? हाँ, ये देखो आप, इसके अंदर भी क्या है, लीनियर रिग्रेशन, ओके? और यू हैव गॉट लॉजिस्टिक रिग्रेशन,
linear regression, linear regression, polynomial regression. Okay, you have got decision tree regression or regressor. Okay, you have got support vector regressor. तो ये पूरे I'm going to give you all the list of these algorithms. ये पूरे रिग्रेशन में आते हैं और इसके अंदर यानी ये क्लासिफिकेशन में जो एल्गोरिथम्स है वो कौन से हैं ये देखिए आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन. Okay, and you have got decision tree classifier. Okay, support vector classifier. So let me tell you that these all are based on statistical technique. तो ये regression और पहले आप ये समझो कि when you will go for regression, when you will go for classification. तो आपको कभी भी कुछ भी प्रिडिक्ट करना है, कौन से वेरिएबल को प्रिडिक्ट करना है और वो वेरिएबल कंटिन्यूअस है या कैटेगरिकल है, तो वो आप उस बेसिस पे आप डिसाइड करना. ओके, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिए. तो अगर मैं बोला इन्हें फॉर एग्जांपल आपको, चलिए मैं थोड़े क्वेश्चन है आपके यहाँ, प्रिडिक्टिंग एज ऑफ ए कस्टमर, कुछ भी एज ऑफ ए कस्टमर और एनीवन. तो ये यानी कुछ भी इसकी, तो ये प्रॉब्लम क्या है, रिग्रेशन है क्लासिफिकेशन? रिग्रेशन. Okay, good. Regression, good, right. Okay, for example, you want to predict, okay, customer churn, for example, predicting customer churn. Customer churn मतलब whether customer will leave the business. Okay, customers leaving or customer leaving the business. Leaving मतलब customer now buying from another vendor, another business. बोलिए ये क्या में आएगा customer churn? चलिए बोलिए आप लोग इसके आंसर आ दीजिए. सेकंड वाला बोलिए. वो सेकंड वाला क्लासिफिकेशन में आएगा सर. गुड, राइट, सही है. और थर्ड वन रिग्रेशन ही होगा सर. या ऑफ कोर्स रिग्रेशन है, क्योंकि माइल्स पर गैलन कुछ भी हो सकता है ना, रेंज कंटिन्यूअस है ये. कंटिन्यूअस. या ये कैटेगरी का, ये कंटिन्यूअस, कैटेगरिकल, कंटिन्यूअस. तो आपके ठीक है आंसर, वेरी गुड. तो हम लोग तो ये सारे एल्गोरिथम्स है. ओके, तो मैं और ये इसकी कंप्लीट लिस्ट आपको दे देता हूं मैं. तो इनफैक्ट अगर मैं बोला ये देखिए अब ये लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल, डिसीजन ट्री, ये क्या है? दे ऑल आर स्टैटिस्टिकल टेक्निक. ओके, दे आर ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक. ओके, तो हम लोग एक एक रिग्रेशन, पॉलिनोमियल, डिसीजन ट्री, सपोर्ट, एक एक एल्गोरिथम की बात करेंगे हम लोग. तो नाउ वेयर आर दिस एल्गोरिथम्स? ओके, वेयर आर द एल्गोरिथम्स? कहां पर ये एल्गोरिथम्स क्यों है, कहां पर रहते हैं ये एल्गोरिथम्स? सो हाउ द एल्गोरिथम्स आर पैकेज. तो हाउ एमएल एल्गोरिथम्स आर पैकेज. तो इसका आंसर ये लाइब्रेरी है ना, इसका मतलब आंसर. तो इसका आंसर क्या है? लाइब्रेरी. कौन सी लाइब्रेरी? sklearn, या इसको नाम और एक साइकिल, इसको बोलेंगे साइकिल लर्न. साइकिल लर्न. तो ये लाइब्रेरी में, ये पाइथन में, ये लाइब्रेरी में आपको पूरे ये आपको मिल जाते हैं. तो व्हेन यू इंपोर्ट दिस sklearn साइकिल लर्न लाइब्रेरी, तो यू विल गेट ऑल. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा इंपोर्ट sklearn,
तो you get all inside sklearn, you have got all the algorithms, पूरे algorithms है। तो यहाँ से आपको algorithm यूज करके क्या करना, आपको मॉडल बनाना रहता। अब मॉडल के बारे में विल टॉक अबाउट लेटर, मॉडल कैसा बनाते हैं, व्हाट इज मॉडल, हाउ टू बिल्ड मॉडल, ओके, तो विल टॉक मोर अबाउट इट। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली मॉडल बना रहे हैं, और ये क्या में आ रहा है, सुपरवाइज लर्निंग में आ रहा है, सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग। अभी हम लोग किसकी बात करें, सुपरवाइज लर्निंग। तो व्हाई, यानी व्हाई इट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग, व्हाई सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हम लोग जब मॉडल बनाते, जब प्रिडिक्शन करते हैं हम लोग, तो हम लोग यानी इनपुट और आउटपुट दोनों देना पड़ता। जब मॉडल जब बनाते हैं आप, मॉडल को जब आप ट्रेनिंग करते हैं, तो आप यानी इनपुट मतलब पूरे फीचर्स प्लस यू आल्सो हैव टू गिव आउटपुट, मींस you can say target variable, outcome variable, target variable या outcome feature या variable, इसको भी आप इनपुट को फीचर्स बोलो या वेरिएबल्स बोलो, सेम, या प्रेडिक्टर्स बोल सकते हैं आप, प्रेडिक्टर्स, ओके। तो ये मॉडल, तो why it is called supervised learning, because we are giving not only input but we are giving output for training the model, that's why it is called supervised। तो मतलब एग्जांपल कैसा रहता, मतलब यू नो, अगर आप अब ये एक हमेशा कॉमन एग्जांपल है, अगर आपको जैसा कि यू नो, इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट, से फॉर एग्जांपल प्रिडिक्टिंग द सैलरी, प्रिडिक्टिंग सैलरी क्या में आता, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, रिग्रेशन में आता सर। सैलरी क्या है, कंटिन्यूअस है ना, तो ये ओके। तो प्रिडिक्टिंग द सैलरी, तो सैलरी क्या होगा, सैलरी इज व्हाट, सैलरी इज कॉल्ड टारगेट वेरिएबल। बट उसके लिए हमको क्या चाहिए, वी टू प्रिडिक्ट द टारगेट वेरिएबल वी रिक्वायर व्हाट, we need features या predictors, we need what, one or more feature या predictor variables। तो सैलरी के लिए अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आस्किंग यू पीपल, सैलरी के लिए प्रिडिक्टर क्या हो सकता, व्हाट कुड बी द प्रिडिक्टर, if you want to predict salary, what could be the predictor? परफॉर्मेंस, सबसे इंपॉर्टेंट ये, या परफॉर्मेंस भी हो सकता है, करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बोलिए आप, ये है post, एक्सपीरियंस। तो फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा है तो सैलरी बहुत रह सकती नहीं, इफ मोर एक्सपीरियंस मोर सैलरी, ट्रू फॉल्स, ट्रू है। तो ट्रू, तो मतलब दोनों के बीच में रिलेशनशिप है नहीं, एक्सपीरियंस और सैलरी है सर, देयर इज अ रिलेशनशिप। तो वही यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाँ, क्वालिफिकेशन, अब इसके अंदर क्या है मालूम, मैं क्या बोला यहाँ पर देखो, वन और मोर बोला मैं, तो सैलरी है, अदर 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 कौन से हो सकते हैं, अदर प्रेडिक्टर्स या वेरिएबल्स या फीचर्स बोलो, और क्या क्या हो सकते हैं, और क्या क्या हो सकते हैं, आप बोले क्वालिफिकेशन, करेक्ट, और एक क्या बोले, कुछ बोले थे ना, क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस बोलो, आउटपुट बोलो, ओके। अगर एज ए एम्प्लॉय आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, ओके, आप तो आप यू आर वर्किंग ऑन मोर, यू नो, रेवेन्यू ज्यादा हेल्प जनरेट कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, तो ये सारे हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस भी एक है। तो प्रिडिक्टर एक भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, एक से ज्यादा।
तो इसके अंदर यानी प्रिडिक्टिंग द सैलरी, मतलब सैलरी क्या है, ये टारगेट वेरिएबल है, और एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस ये क्या है, इनपुट बोलो या फीचर्स बोलो, यानी तो प्रिडिक्टर्स बोलो, ये वेरिएबल्स। तो हम लोग जब मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हम लोग ये सारे देना पड़ता, और ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, रिग्रेशन। तो ये प्रॉब्लम तो हम लोग क्लियर बात करेंगे, ये क्या में आता है, कोशिश करेंगे ना रिग्रेशन में। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तो ये जो टारगेट वेरिएबल है ना, सबको देना पड़ता है, मतलब तो फॉर एग्जांपल आप ट्रेनिंग जब मॉडल को ट्रेन करते हो तो आपको एक्सपीरियंस, तो जब मॉडल को ट्रेन करते हो तो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग द मॉडल, ओके, प्रोवाइड इनपुट प्लस आउटपुट। तो इनपुट में क्या हो सकता है, इनपुट में क्या है, इनपुट में क्या है, वन और मोर प्रिडिक्टर या फीचर्स, वन और मोर। तो फॉर एग्जांपल क्या हो सकता, तो जैसा कि ये फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक्सपीरियंस और सैलरी, तो दोनों पर था। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल मैं बोला एक्सपीरियंस ईयर्स में, ओके, फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस 1 ईयर, सैलरी से 10,000, 2 years salary is 15,000, 3 years salary is 25,000, 4 year salary is 45,000। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ये तो इस तरह से रहेगा। तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है नहीं, एक्सपीरियंस और सैलरी में है ना? हाँ, उसको क्या बोलते हैं आप, कोरिलेशन। कोरिलेशन। तो कोरिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है सर। हाँ, ये क्या क्या वैल्यू है इसके, -1 to 1, राइट, -1 to 1, -1 मतलब नेगेटिव, +1 मीन्स पॉजिटिव, ओके। तो एंड 0 मतलब नो रिलेशन। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा, क्लोज टू 1 है नहीं, पॉजिटिव है। अच्छा, और एक बात देखिए आप, मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन करा, ये रिलेशनशिप है, आई एम आस्किंग इज इट लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर है सर। या गुड, लीनियर। तो लीनियर मतलब if one variable is increasing, the other variable is also increasing in the same direction. So experience increasing, salary also increasing. तो ये क्या है, ये it is what, linear, okay, linear। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये देखिए, प्रोडक्ट डिमांड मतलब इन टर्म्स ऑफ सेल्स देखेंगे अपन, सेल्स फिगर, सेल्स। तो फॉर एग्जांपल क्या होता मालूम, अब यानी नंबर ऑफ यानी सेल्स, फॉर एग्जांपल मैं मंथ का ले रहा हूँ, मंथ एग्जांपल, टोटल सेल्स इन क्वांटिटी, फर्स्ट मंथ फॉर एग्जांपल 1000, सेकेंड मंथ 2000, थर्ड मंथ 4000, okay, or maybe for example 3000, fourth month for example now it's going, you know what, now look at that, 15, fifth month is going 900, okay, so 6 months is going what, 500। तो क्या मतलब है, what is the meaning, the demand is growing or demand is coming down? स्टार्ट में इंक्रीज हुई, बाद में डिक्रीज होगी। ओके, चलिए मेरे को ये बोलिए, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है नहीं है, है ना यार, यस, इज इट लीनियर नॉन लीनियर,
शायद नॉन लीनियर होगा सर। हाँ, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर, क्योंकि एक अप होके डाउन हो रहा ना, तो ये एग्जांपल प्रोडक्ट डिमांड क्या है, नॉन लीनियर। ओके, तो बेसिकली मेरे को आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो लीनियर नॉन लीनियर रिलेशनशिप पे बात करेंगे हम लोग। और अच्छा, यहाँ पर ये टारगेट वेरिएबल और प्रिडिक्टर्स एक भी हो सकता, टारगेट वेरिएबल एक होता मगर प्रिडिक्टर्स एक से ज्यादा होता। तो लेबलिंग, ये जब हम ये टारगेट वेरिएबल प्रोवाइड करते हैं तो हम बोलेंगे भाई जब साल एक्सपीरियंस 1 ही है तो इतनी सैलरी है, 2 है तो आपको ये दोनों देना पड़ेगा, मतलब तो यानी आप टारगेट वेरिएबल भी देना पड़ेगा आपको, देन ओनली इट इज गोइंग टू लर्न, देन द मॉडल विल लर्न दैट हाँ अगर इतना एक्सपीरियंस है तो ये है। मैं आपको एक अनदर एग्जांपल, देखिए यहाँ पर यानी फॉर एग्जांपल हमारे जो फीचर्स है, ये प्रिडिक्टर्स क्या बोलेंगे आप उसको, प्रिडिक्टर्स है। तो फॉर एग्जांपल मैं यानी एरिया ऑफ हाउस, एरिया इन एसएफटी स्क्वायर फीट, तो अगर आप बोलेंगे और इसका क्या प्राइस है, तो आप यानी ये बोल सकते हैं एरिया अगर फॉर एग्जांपल 1000 एसएफटी है तो प्राइस कितना है, फॉर एग्जांपल ये सपोज मिलियंस में है, इन मिलियन, तो 1000 है तो बोलेंगे आप 1 मिलियन है, और 1100 अगर है तो 1 पॉइंट बढ़ रहा है यानी मतलब राइट 1.1 फॉर एग्जांपल, और 1200 है तो 1.3 हो जा रहा है, मतलब और बढ़ रहा है। अगर 1300 है तो 1.5, मतलब जितनी ज्यादा एरिया है तो उसकी और वैल्यू बढ़ेगी। तो ये एरिया और ये प्राइस है, ये तो आपको बोलना पड़ेगा अगर एरिया इतना है तो इतना प्राइस ये है। तो जब व्हेन यू आर ट्रेनिंग द मॉडल ना, तो आपको इनपुट भी नहीं दे रही, आउटपुट भी दे रही, इसलिए इसको क्या बोलते हैं मालूम, सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं, सुपरवाइज लर्निंग। और प्लस ये क्या है मालूम, ये रिग्रेशन है, ये प्रॉब्लम रिग्रेशन, बिकॉज ये रिग्रेशन है। और ये नहीं, पहली बात तो ये है, ये क्या में आता है, ये रिग्रेशन क्या में आता है, मतलब सुपरवाइज लर्निंग। अब रिग्रेशन में भी ये लीनियर नॉन लीनियर है, ये जो हम जो डिस्कस करें ये है लीनियर लीनियर। और ये क्या मालूम, ये लीनियर में भी क्या में आता मालूम, लीनियर के अंदर क्या आता मालूम, लीनियर में भी ये सिंपल लीनियर में आता, सिंपल यू नो, सिंपल का मतलब ओनली वन प्रिडिक्टर, अगर आपका प्रिडिक्टर एक है तो 1। अगर मैं बोला यहाँ पर, अगर ये सेम एग्जांपल आपको ऐसा दिया, मैं एरिया भी है और दूसरे भी प्रिडिक्टर्स है, एरिया है, नंबर ऑफ रूम्स, एज ऑफ हाउस, तो अब इसमें प्रिडिक्टर कितने हो गए आपके, एक से ज्यादा हो गया नहीं, इजंट इट। तो आपको अगर एरिया को घर के प्राइस को अगर प्रिडिक्ट करना है तो इतने सारे एरिया, नंबर ऑफ रूम्स, एज ऑफ हाउस, ओके। और आप यानी मेक टाइप कैसा बनाए, ऑल फैसिलिटी प्लस मोर। तो ये भी क्या है, मतलब ये नहीं, मतलब लीनियर है, बट ये ये सिंपल नहीं है, मल्टी लीनियर रिग्रेशन, because we are using multiple features to predict the target. ओके, मैं आप लोगों से थोड़ा रिस्पांस समझ में आ रहा आपको, सिंपल और मल्टी को किसको बोलेंगे? यस सर। अब जैसा कि हमको सैलरी को प्रिडिक्ट करने का है, अगर हम एक्सपीरियंस, मैं खाली एक्सपीरियंस से सैलरी को प्रिडिक्ट करूंगा, सिंपल है मल्टी है? सिंपल है सर। अगर हमको उसमें क्वालिफिकेशन भी ऐड कर दिए, परफॉर्मेंस भी ऐड करे तो क्या होता है वो मल्टी हो जाएगा सर, मल्टी लीनियर रिग्रेशन। तो वही सिंपल ही है बस इसका। और इसको सुपरवाइज क्यों बोलते बोले तो क्योंकि हम लोग टारगेट भी, जब आपको मॉडल ट्रेन करते हो तो आप दोनों देना पड़ता। ओके, तो मॉडल ट्रेनिंग में क्या देना है, मतलब मॉडल ट्रेनिंग में इनपुट प्लस आउटपुट, मतलब टारगेट वेरिएबल। अब मॉडल ट्रेन हो गया ना, मॉडल ट्रेन हो गया, टेस्टिंग कर रहे हैं आप, तो टेस्टिंग में क्या देना, ओनली इनपुट,
मॉडल गिव्स आउटपुट आउटपुट। ओके, टेस्टिंग करो या एक्चुअल प्रेडिक्शन में आप इनपुट दो, मॉडल एक मतलब मॉडल बन गया। ओके, अब यहाँ ये एग्जांपल ये है, देखिए ये हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का मॉडल बन गया। ओके, यानी उसका हाउस प्राइस प्रेडिक्टर। ओके, 1 मिनट में देना। ओके, तो हाउस प्राइस प्रेडिक्टर ये क्या है? ये मॉडल है, ये मॉडल है। तो इसको क्या देना पड़ता? आप खाली खाली आप क्या देना पड़ता? आप इनपुट क्या देना है आपको? इनपुट फॉर एग्जांपल एरिया। फॉर एग्जांपल आप बोले कि एरिया कितना है? 1300 SFT है। तो उन्हें क्या देंगे आपको? आउटपुट क्या देंगे? 1 प्रेडिक्टेड प्राइस। प्रेडिक्टेड प्राइस देंगे जो भी प्रेडिक्टेड है। तो इस तरह यानी मतलब यानी इनपुट दिए तो उन्हें ऑटोमेटिक आपको दे देता मतलब। तो मॉडल ट्रेनिंग के वक्त हम देना और जब एक्चुअल प्रेडिक्शन के टाइम हम उन्हें हमको प्रेडिक्शन दे देता। ओके, तो ये एक एडवांटेज है। देखो, आप पास डेटा लेके आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी आप लोग समझ गए होंगे कि ये मशीन लर्निंग इतना पॉपुलर क्यों हो गया, इतना फेमस क्यों हो गया, एवरीबडी इन द वर्ल्ड। आप इमेजिन करो हर बिजनेस क्या कर सकता मालूम। अच्छा, आप इसको अब मेरे को अगर आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोले ना, आप अगर मेरे से बात करते एक्यूरेसी की बात करते ना, यानी मतलब किसकी एक्यूरेसी की बात करूं मैं? एक्यूरेसी ऑफ मॉडल। तो आप डोंट एक्सपेक्ट 100%, आप 100% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट मत करो। ओके, लेट मी टेल यू, डोंट एक्सपेक्ट 100%, डोंट एक्सपेक्ट। फॉर एग्जांपल ह्यूमन लेवल एक्यूरेसी भी 100% नहीं होती। ह्यूमन लेवल एक्यूरेसी नहीं हो सकती मतलब। तो फॉर एग्जांपल अगर 90% एंड अबव है, 90% अबव, तो इज एक्सेलेंट, वेरी गुड। in some cases it may be 80%. In some cases maybe 80% is 80% may be good. Okay, 80% may be good actually. तो अब उसको मेजर कैसा करेंगे? If the model accuracy is better than the human expert level accuracy, then the model is good actually. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करें, जो बेसिकली जो रियल एस्टेट में जो डील करते हैं, रियल एस्टेट एजेंट बोलो, रियल एस्टेट मैनेजर बोलो, अगर वो लोग कुछ प्रिडिक्ट कर रहे और उससे बेहतर ये अपना मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा, तो इसका मतलब मॉडल एक्सेप्टेबल है। ओके, तो इफ द मॉडल इज प्रिडिक्टिंग better, even little, okay, better than human experts, then it is good, then acceptable. कभी कभी सर लेकिन पास डाटा के अगेंस्ट भी चले जाता सर फ्यूचर। वो तो अनसर्टेनिटी रहती ना, तो यू नीड टू, इसलिए वो तो इसलिए 90% 80% का मतलब क्या? वो मतलब 90% मतलब 10% it can go wrong, isn't it? 90% accurate. तो इसका मीनिंग क्या? व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग क्या है? मतलब दैट मीन इट मे गो wrong how many times? 10% times. Yeah, 10% times जा सकता, but that is acceptable. Okay, अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो अगर उन्हें थोड़े बहुत गलती करा तो दैट इज ओके। हाँ, अलबत्ता ये है कि हेल्थ केयर में बहुत केयरफुल रहना पड़ता। तो ये मॉडल को आप 100% उसको डिनाई वो नहीं कर सकते। अगर कोई प्रिडिक्ट करा कि कोई पेशेंट डायबिटिक है, कैंसर पेशेंट है, तो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं कि जब मॉडल बोल रहा 80% 90%, तो आप सीरियस होकर उसको और डबल टेस्ट कर सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं। तो एटलीस्ट ये काम तो आसान कर रहा आपका। ओके, तो ये नहीं मतलब अब ये भी है कि आर दिस मॉडल रिप्लेसिंग ह्यूमन एक्सपर्ट? नो, दे आर ऑगमेंटिंग, दे आर नॉट रिप्लेसिंग। ओके, तो
Are Yes, these ML models replacing human experts? Human expert मतलब कोई भी बोला, जैसे कि for example doctors या radiologists, okay, या यानी sales, marketing people, कोई भी, किसको भी है मतलब. So no. The answer is no. Just augmenting, okay? Just augmenting. मतलब उनकी augmenting their expertise, augmenting their capabilities, their capabilities or ability to make decisions. So मतलब just kind of assistance, help actually, kind of, okay? So it's very good actually. अब मैं बोलता हूँ कि आपके पास you have got 1 million customers. 1 million customers. It's next to impossible to predict that which customer is going to do. Okay, next to impossible to manually predict. Okay, next to impossible to manually predict, forecast which customer might leave next. Okay, so here ML can help, machine learning can help actually. So here हमारे पास क्या है? Here ML can help. तो ML can help. अगर ML बोलता है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर 80% चांसेस है, ये कस्टमर 70% चांसेस है लीव करने के, ये इसको बोलते हैं कस्टमर चर्न बोलते हैं, कस्टमर चर्न. इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कस्टमर चर्न. ओके, तो कस्टमर चर्न को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो मॉडल हेल्प कर रहा है ना भाई. तो हमको पता चला कि ये 300-500 कस्टमर्स चांसेस है कि 90%, तो यू कैन मेक योर सर्विस बेटर, यू कैन टॉक टू देम, प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट, सर्विस एंड ऑल दैट. सो इट्स ग्रेट. ओके, अभी तो आप बोलो में ये हेल्थ केयर में भी काफी यूज हो रहा है मशीन लर्निंग, हेल्थ केयर में और डिफेंस में, इन एवरी फील्ड दे आर यूजिंग. ओके, तो अभी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मालूम? यू रिक्वायर डेटा प्लस. व्हाट यू रिक्वायर अभी बनाने के लिए, व्हाट यू रिक्वायर टू बिल्ड दिस मॉडल? यू रिक्वायर ML मशीन लर्निंग एल्गोरिथम प्लस डेटा. तो अगर आप मेरे को बोले कि भाई ये मॉडल किसको बोलते हैं टेक्निकली, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम प्लस डेटा को बोलते हैं मॉडल बोलते हैं, ये दोनों को मिलाकर डेटा मॉडल. ओके, अब इसमें आपका मशीन लर्निंग मॉडल एल्गोरिथम का सिलेक्शन और उसके पैरामीटर्स और आपकी क्वालिटी ऑफ डेटा मैटर्स में. ओके, अगर आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सही नहीं है और डेटा सही नहीं है, तो मॉडल का एक्यूरेसी का प्रॉब्लम होता है. तो if you are selecting the right algorithm, because there are so many algorithms are there, if you are selecting the right algorithm and if you have the right data or the quality data, then you can expect model performance, model accuracy to be very high. चलिए हम लोग अभी पहले बिस्मिल्लाह बोल के स्टार्ट शुरू स्लोली जाएंगे. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, डिसीजन ट्री, ये पूरे क्या मालूम स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, स्टैटिस्टिक्स. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिग्रेशन के बारे में. अच्छा, कोरिलेशन के बारे में डिस्कस करें हम लोग. कोरिलेशन क्या मतलब इट विल टेल द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, राइट? इट विल टेल द it tells a relationship, right? It tells a relationship, but it cannot predict. Okay, tells the relationship, yes, no, yes or no, right? Relationship hai, yes, no, how much and all that, but cannot predict. Okay, और एक बात याद रखो आप, correlation does not mean causation. मेरे को आप लोग कोई भी इसका माने बोल सकते, क्या मतलब है? Anybody tell me? Correlation doesn't mean causation. Anybody can tell the meaning of this? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सैलरी और एक्सपीरियंस के बीच में कोरिलेशन है ही नहीं है सर. बट कॉजेशन का मतलब क्या है? मतलब इज सैलरी इंक्रीजिंग ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस ओनली और अदर फैक्टर्स? अदर फैक्टर में अफेक्टेड. हाँ, तो इसकी वजह से बोल सकते हैं कि कोरिलेशन
doesn't mean that it is 100. मतलब ये नहीं बोल सकते कि आप because of experience only there is an increase in salary. There could be other factors. Okay? Yes. मतलब experience and salary. Yes, highly correlated. But still, we cannot say because of increase in experience, there is an increase in salary. There is an increase in salary. Because other factors are also responsible. Because there are other factors. Example, you know that. क्या हो सकते? Performance, right? Performance मतलब completing projects on time, qualification, etc. तो इसके लिए रिग्रेशन करते हैं. रिग्रेशन इज फॉर प्रिडिक्शन. Statistical. This is a statistical technique. In next session, inshallah, we are going to talk more about this. और हम लोग ये भी बात करेंगे कि हम लोग ये यानी मतलब what is exactly unsupervised learning किसको बोलते हैं, reinforcement learning, all will be discussing. Okay. तो टुडे अभी चलिए आप लोग क्वेश्चन करिए प्लीज. गो अहेड आस्क क्वेश्चन. तो आज का टॉपिक क्या था? मशीन लर्निंग. ओके, एमएल एंड इंट्रोडक्शन. चलिए मैं ये डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड कर देता हूं. मैं आज हम लोग इतना ही डिस्कस करें. मैं आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर न्यू फोल्डर. चलिए कोई भी anybody has got any question for me for today this particular topic? We are going to continue tomorrow. No, sir. तो अब ये जो हम लोग रिग्रेशन कैसा काम करता, तो उसके बाद में आपको पूरा स्टैटिस्टिकल टेक्निक समझना पड़ेगा. तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द स्टैटिस्टिकल टेक्निक. ये पूरे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है. तो मैं इसको अपलोड कर रहा हूं. अगर एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या? नो फॉर टुडे. चलिए मैं अभी आपको ये डॉक्यूमेंट, लास्ट डॉक्यूमेंट पूरे आप लोग अपडेटेड हो गए थे ना, मिल गए थे ना आप लोगों को डॉक्यूमेंट?